جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی بچا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی حدیث مبارکہ جو زبان مصطفیٰ سے کئی بار نکلی وہ سنانے لگا ہوں۔ دل کے کانوں کے ساتھ سنیں گے تو یقیناً ایمان تازہ ہوگا اور عشق مصطفیٰ بھی بلندیوں پہ چڑھ جائے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس واقعہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے 7 مرتبہ سے بھی زیادہ بار سنا کہ آپ جہاں تشریف فرما ہوتے آپ اس واقعے کو سنانا شروع فرما دیتے۔ واقعہ ایک بنی اسرائیل کا جو آدمی ہے جس کا نام کفل ہے، مال بھی بڑا دیا اللہ نے کفل کو، لیکن عیاش بڑا تھا، اپنے وقت کا امیر ترین آدمی شمار کیا جاتا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے مابین تشریف فرما ہوتے تو روایت عمر فاروق کے مطابق آپ کئی مرتبہ اس واقعے کو سناتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسی طرح سرکار تشریف فرماتے، سرکار نے فرمایا کہ کفل کا واقعہ نہ سناؤں تمہیں۔ کفل کا واقعہ یوں ہے کہ کفل ایک بنی اسرائیل کا آدمی تھا۔ اس بندے نے کوئی ایسا گناہ نہیں چھوڑا جو اس نے نہ کیا ہو، کوئی ایسی دل کی خواہش نہیں چھوڑی جو اس نے پوری نہ کی ہو، کوئی ایسی عیاشی والی جو کام ہے، زندگی ہے، اس نے اتنے جو لمحات گزارے ہیں اپنی پوری عیاشی کے ساتھ اس نے اپنی زندگی گزاری، نہ وہ دن دیکھتا نہ وہ رات دیکھتا، جس وقت اس کا من چاہتا وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا۔ اور لوگ بھی اس بات پہ گواہ تھے کہ کفل تو اتنا بدکار ہے کہ کوئی گناہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، لیکن جب بارگاہ خداوندی میں دل بدلنا لکھ دیا جاتا ہے تو پھر دیر نہیں رہتی۔ اب اس کی دنیا گویا بدلنے والی تھی۔ واقعہ یوں ہوا کہ کفل اپنی عیاشیوں میں مستیوں میں بیٹھا ہوا، ایک عورت اس کے پاس آتی ہے۔ عورت نے آن کے سوال کیا، کفل بڑے مالدار ہو، بڑا پیسہ تمہارے پاس ہے، میں بھوکی ہوں، میری اولاد بھوکی ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ ہے نہیں، چند سکے دے دو گے میرا گزرن بسرن اچھا ہو جائے گا، تیرا کچھ جائے گا نہیں۔ گویا کہ چلتے ہوئے دریا میں سے ایک چھوٹا سا کوزہ بھر لیا تو کیا نقصان ٹھہرا، کچھ بھی نہیں۔ اب وہ تو عیاش قسم کا آدمی تھا، اس نے کہا کہ پیسے تمہیں مل جائیں گے لیکن تمہیں میری ایک شرط ماننا پڑے گی۔ وہ مجبور تھی، لاچار تھی۔ اب سرکار کا بھی فرمان ہے کہ جو بندہ کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے پھر وہ بندہ آزمائش کی چکی میں ایسے پستا ہے کہ دنیا اس کا انجام دیکھتی ہے۔ اب اس کفل نے اس مجبور عورت سے کہا کہ تو مجبور ہے، تجھے تو پیسے چاہیے، پیسے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں لیکن کچھ میری باتیں ماننا پڑیں گی۔ عورت نے کہا
बादशाह सलामत, पैसा तेरे पास है, जाओ जलाल तेरे पास है, मैं तो मजबूर हूँ, लाचार हूँ, मुझे तो पैसे चाहिए, बच्चों का पेट पालना है, अपना पेट पालना है, जो काम कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। किफल ने कहा कि ठीक है, 60 दिनार ले लो, एक रात मेरे पास गुजार लो। औरत मजबूर थी। जब किफल ने ये बात कही तो उसने कहा कि ठीक है, 60 दिनार दे दो, मैं तेरे साथ रात बिता लेती हूँ। अब जब ये उसने शर्त कबूल की, शर्त कबूल करने के बाद ज़ारों की तार रोना शुरू हो गई। जब किफल की नजर उस औरत पे पड़ी तो किफल ने कहा, बीबी क्यों रो रही हो? मैंने कोई तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती तो नहीं किया, मजबूर तो नहीं किया, अपनी मर्जी से तूने हामी भरी है और मैंने तुम्हें पैसे दे देने हैं। उस औरत ने कहा, मैं रो इसलिए नहीं रही कि मैं जाने मुझे पैसे कम मिल रहे हैं या नहीं, बल्कि रो इसलिए रही हूं कि मैं एक ऐसी औरत हूं कि मैंने अपनी सारी जिंदगी गुजार दी, आज तक मैंने अपने जिस्म को किसी गैर महरम को छूने भी नहीं दिया, लेकिन आज वक्त ने करवट ली, मजबूर होके तेरे दरवाजे पे आ गई। तू भी खुदा का बंदा है और तू खुदा की दी हुई दौलत में से चंद टकों की खातिर मेरी इज्जत बर्बाद करना चाहता है। रो इसलिए रही हूं कि सारी जिंदगी तो इज्जत के साथ गुजार दी, उस मालिक जिसने पैदा किया उसकी नाफरमानी नहीं की। डर इस बात से रही हूं कि ये एक लम्हे की लज्जत तेरा क्या बनेगा, सारी जिंदगी मुझे परेशानी के आंसू बहाने पड़ेंगे। उस मालिक को क्या मुंह दिखाऊंगी कि सारी जिंदगी तो पाक दामनी में गुजार डाली, लेकिन जब आजमाइश का वक्त आया तो एक दुनियादार के दर पे चली गई और अपनी इज्जत को दांव पे लगा दिया। बस डर इसी बात से रही हूं कि उस मालिक को क्या मुंह दिखाऊंगी कि वो मालिक तो जब्बार है, कहार है, उसकी मर्जी जो चाहे वो करे। बस इसी वजह से खौफ खा रही हूं कि ये छोटे से गुनाह की वजह से न जाने कितनी बड़ी सजा मेरे हक में आ जाएगी। वो किफल था, दुनियादार था, याश था। जब उस किफल ने इस औरत की ये आहो बुका सुनी और उसके आंखों से निकलने वाले आंसू को देखा, वो शायर ने क्या खूब कहा था कि दिल से जो निकलती है बात वो असर रखती है। यानी जो इंसान अपने दिल से हकीकी मानों में बात निकालता है वो यकीनन अगले बंदे पे असर करती है। औरत ने ज़ारों की तार रोना शुरू किया। उसके रोने ने किफल का दिल बदल डाला। किफल आन के औरत के पास आया, आन के कहने लगा, ऐ बीबी जान, खुदा के लिए माफ कर दीजिए, मैं तो कितनी नादानी वाली जिंदगी गुजार के आया। कोई गुनाह ऐसा नहीं जो मैंने किया ना हो, कोई जुल्म ऐसा नहीं जो मैंने किया ना हो, कोई ऐसा हक नहीं कि जो मैंने खाया ना हो। मैंने दुनिया का हर बुरा काम किया है, उस बारगाह खुदाबंदी की तरफ तो मेरी तवज्जो ही कभी नहीं गई। इस बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं कि आखिर मैंने मरना भी है, उस रब को जान भी देनी है। आखिर एक लम्हे की लज्जत लेके भला मैं कर क्या लूंगा। जब औरत की बातें सुनकर किफल का दिल बदलता है। किफल ने कहा, जा बीबी, तुझे अल्लाह की खातिर आजाद किया, ये 60 दिनार भी ले जा, बच्चों का पेट पाल, अपनी देखभाल कर, और मैं तुझे गवाह बना के बारगाह खुदाबंदी में तौबा करता हूं कि या बारी ताला, मैं किफल आज से पहले जितने गुनाह कर बैठा, इस तेरी अल्लाह की प्यारी बंदी को गवाह बना के तौबा करता हूं, या बारी ताला मेरी तौबा कबूल फरमा ले। जब किफल ने उस औरत के सामने ज़ारों की तार रोना शुरू कर दिया और तौबा कर ली, इत्तेफाक के साथ उसी रात
किफल की मौत हो गई। फिर किफल के मरने के बाद उसी सुबह रिवायत में आता है कि फअस्बहा मकतूबन अला दारी या अला बाबिही के अल्फाज आते हैं कि जब किफल मरा तो फअस्बहा, तो फिर उसी सुबह मकतूबन लिखा हुआ था अला बाबिही, किफल के दरवाजे पर क्या लिखा हुआ था, इन्नल्लाह कद गफरल किफल, कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किफल की बख्शिश फरमा दी है। उस किफल ने अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किफल के दरवाजे पे लिख दिया कि ए किफल, तू सारी जिंदगी गुनाह करता रहा, हर किस्म की अयाशी तूने की, हर किस्म की बदगारी तूने की, लेकिन आज जब तू मेरी बारगाह में सच्ची तौबा करने आ गया है तो मैं दुनिया को गवाह बना के तेरे दरवाजे पे लिख दूंगा कि इन्नल्लाह कद गफरल किफल, के अल्लाह ने किफल की बख्शिश फरमा दी है। वाक़या हमने सुन लिया। अब आते हैं कि इस वाक़े से नतीजा क्या निकला। नंबर 1, हदीस मुबारका अक़वाल औलिया सुन रखे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जब कोई सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि सारे आसमानों पे चर्चे होना शुरू हो जाते हैं। शर्त ये है कि अल्लाह से तौबा सच्ची की जाए। तो शायर ने क्या खूब कहा था कि दफ्तर स्याह है या दुला है आजा, तेरा मालिक रहमत पे तुला है आजा। वो मालिक तो हर वक्त दरवाजे खोल के बैठा है कि आ मेरे बंदे, मुझसे तौबा कर, मैं तेरी तौबा को कबूल करूं और तुझे आला मकामात अता फरमा दूं। लेकिन हमारी बदकिस्मती, अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया। बात करने पे आते चले जाएं तो बातें खत्म नहीं होती। वो कमाल का शेर है कि अशरफुल मखलूकात होने की वजह से आज हम अपने आप को नहीं पहचान रहे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यकीनन हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है। हमें अपना स्टेटस, अपनी अहमियत खुद समझनी चाहिए। हम गुनाहगार हैं, गुनाह हो जाते हैं, लेकिन यकीनन किफल से बड़े गुनाहगार तो हम नहीं हैं। अगर किफल की तौबा कबूल हो सकती है तो यकीनन हम भी अगर सच्चे दिल से उस बारगाह में चले जाएं तो हमारी तौबा भी कबूल हो सकती है। नंबर 2, औरत मजबूर थी, लाचार थी, सारी जिंदगी पाक दामनी में गुजार दी, लेकिन जब मजबूरी सर से भी ऊपर चली गई, किफल के पास आई, दिल साफ था, औरत की अल्लाह ने इज्जत भी महफूज रखी, किफल को ईमान की दौलत भी नसीब फरमा दी। क्या पता चला कि जब इंसान मन का सच्चा होता है, दुनिया भी उसकी गुलाम बन जाती है, बल्कि उसके वास्ता से अल्लाह दुनिया में रोशनियां पैदा फरमा देता है। औरत मन की सच्ची थी, उसको भी अल्लाह ने आसानी के साथ उसका मसला भी हल फरमा दिया, और उसकी सच्चाई की वजह से एक गुनाहगार, एक गाफिल, एक बदकार की दुनिया को भी अल्लाह ने बदल डाला। आइए बारगाह खुदाबंदी में झुक जाइए। आज आमाल करने का वक़्त है, कल जज़ा का वक़्त होगा, का वक़्त होगा। इस मौजू पे गुफ्तगू बड़ी हो सकती है। आज अगर हम जिंदा हैं, आमाल का दफ्तर खुला हुआ है, अच्छे आमाल कर लें, मालिक को राजी कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि कल जब ये आमाल का दफ्तर बंद हो जाए, रजिस्टर बंद हो जाए, फिर हम सोचें कि काश कि एक लम्हा हमें और मिल जाता और हम नेकियां कर लेते, लेकिन अब क्या पछताए हो
کہ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. اللہ